Now we will be starting with residential status of assessee. ठीक है? Right now we have discussed about assessee. Right now we have discussed about persons, their exceptions, everything we have discussed. Now we will be discussing about residential status of assessee. So in case of individual, see now there are different persons. So for every person there will be different rules for the residential status. Now residential status is something that whether they will be taxed more or less will be decided from their residential status, whether they are resident in India or they are non-resident in India. Okay. So we will be discussing about, see there is a difference between citizenship and residential status. Remember this. Don't get confused with citizenship and residential status. So in case of individual, there will be two situations. One will be the resident and the other will be the non-resident. Okay. And in resident, there will be two options: ordinarily resident, and the other option will be not ordinarily resident. So first of all, we have to decide whether the assessee, the person, that individual is a resident or non-resident. So for that there is some condition. So for condition of being resident, what are the condition of being resident? So if an individual shall be resident in India if she fulfills at least any one condition of the following two. There are two conditions mentioned over here. If any of the one condition is fulfilled, that person will be resident. It is not necessary to fulfill both the condition. Any one condition is fulfilled, that person will be resident in India. Okay. So the first will be she has been in India for a period of at least 182 days or more in the relevant previous year. So everyone now must be knowing about the previous year and assessment year. I am not going to repeat it. I am expecting that everyone is aware of it. So if any person who is in India in the relevant previous year for at least 182 days, then that person will be resident in India. So we have to calculate day wise. Don't make it like 6 months. That 182 days is there, so we can say that 6 months. No, we have to calculate day wise. Okay. If this condition is not fulfilled, then we will move to second number condition. Second condition is if she has been in India for a period of 365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. So just see over here what we are going to discuss is she has been in India of 365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous years. अब suppose करो our previous year is 2019-20 and assessment year is 2021. So if we are assuming assessment year is 2021, then relevant previous year will be 2019-20. So excluding that relevant previous year, that is 1920, except that 4 years before 1920, है immediately preceding the relevant previous year, मतलब immediately preceding 1920, the 4 years, he should have been in India for 365 days. Okay, and also has been for a period of 60 days or more during the relevant previous year. And relevant previous year में 60 days रहा हो और relevant previous year को छोड़ के उसके preceding 4 previous years में 365 days India में रहा हो तो वो resident कहलाएगा. तो there are two conditions. That is why it is written or means either condition 1 or condition 2 will apply.
Over here the word is mentioned or, means either condition 1 or condition 2. Any of the condition is fulfilled, the person will be resident in India. So the first condition is quite simple to learn, that at least 182 days that person should be in India. And in next point it says, in condition 2 it says that the person should be in India in the relevant previous year for 60 days. Okay, suppose our assessment year is 2021, so relevant previous year will be 2019-20. so in 2019-20 that person should be in India for at least 60 days, and immediately preceding 4 years that person should be in India for 365 days. If this condition is fulfilled, then that person will be resident in India. Okay, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now there are some certain exception to the above condition number 2 that we have discussed. Now in the following situations, an individual has to stay in India for a period of 182 days in place of 60 days. So over here we have discussed ना कि relevant previous year में 60 days कम से कम होना चाहिए. But there are certain cases, certain situation जहाँ पे ये बोला जाता है कि नहीं, कुछ exceptions हैं जहाँ पे 60 days की जगह हम लोग कितना यूज करेंगे, 182 days को ही यूज करेंगे. क्या वो situation है? First of all, an individual being citizen of India leaves India in any previous year for the purpose of employment in foreign countries, or goes outside India as a member of the crew of an Indian ship. Employment के purpose से foreign country गया है, या फिर crew member है किसी Indian ship का, तो उस केस में हम लोग 60 डेज यूज नहीं करेंगे. सेकेंड कंडीशन में 60 डेज यूज नहीं होगा, वहां पे क्या यूज होगा, 182 डेज. मतलब कोई भी सिचुएशन हो, इन लोग को रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी है. Yes, yes, sir. और सेकेंड कंडीशन है कि एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनी वर्क इन प्रीवियस ईयर. कोई भी काम के लिए, मतलब टूरिज्म के लिए भी आया हो, कोई काम के लिए आया हो, ठीक है, इंडिया विजिट किया है, तो यहाँ पर भी हम लोग उसका 182 डेज का कंडीशन ही देखेंगे, 60 डेज अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो हम लोग को ध्यान रखना है. व्हाट आर दैट पॉइंट्स? तो सी नोट, इफ एन इंडिविजुअल लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग एम्प्लॉयमेंट और जॉब, then the above exception shall not be applied. ठीक है, if any individual lives India for the purpose of searching employment or job. See, right now he went outside India for searching the job, and he does not get employment over there, so that exception will not apply. We will not assume that he has gone outside India for the purpose of employment. No, he has gone for just searching for a job. So in this condition 60 days calculation will be taken. Next, if a person has his employment in India and he goes on tour abroad in connection with employment, ऐसा भी होता है ना कि इंडियन कंपनी में है या इंडिया की कंपनी में वो जॉब कर रहा है और इंडिया से बाहर गया है किसी टूर में, कंपनी वाला उसको भेजा कोई काम से इंडिया के बाहर, तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से तो गया, बट वो एम्प्लॉयमेंट बाहर करने के लिए नहीं गया है, वो कुछ टाइम के लिए गया है, तो वहां पे भी हम लोग 182 डेज नहीं लेंगे, वहां पे भी 60 डेज ही लेके चलेंगे. तो अगर कोई पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है इंडिया में और किसी तौर पे किसी पर्पज से इंडिया से बाहर गया है, अब्रॉड गया है, तो वी विल बी टेकिंग 60 डेज ओनली, नॉट 182 डेज. ओके, तो दैट एक्सेप्शन विल नॉट अप्लाई ओवर हियर. नाउ द थर्ड वन we have mentioned over here that Indian origin. Yes, sir. So what does Indian origin means? Indian origin means any of
her parents or grandparents or himself or herself born in undivided India. Okay, anyone born in undivided India and now they have settled outside India, they will be called Indian origin, person of Indian origin. Undivided India means India before 1947, है ना, when Bangladesh, Pakistan all were the part of India. इंडिया का पार्ट, तो उसको बोलते हैं अनडिवाइडेड इंडिया. तो उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट है, तो वो इंडियन ओरिजिन है. हम लोग तभी ना वर्ड यूज करते हैं, अभी जैसे पेटीएम वेटीएम में सीईओ जो बना और सब बना, तो हम लोग बोलते हैं इंडियन ओरिजिन का बना. वो लोग इंडिया कभी विजिट ही नहीं किया, कभी आया ही नहीं है, बट फिर भी हम लोग बोलते हैं इंडियन ओरिजिन का है. क्यों इंडियन ओरिजिन का है? क्योंकि उसके कोई ना तो कोई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या उसका बर्थ इंडिया में हुआ होगा और वो बाद में चला गया. ठीक है. Now, in calculation of number of days, both days entering in India and exiting from India shall be included. Now, in question, when it will be mentioned that suppose a person came to India on 4th Feb or take 4th July and left India on 20th March. So he came to India on 4th of the July. So we will be taking that 4th July also in calculating the days. He is leaving India on suppose 20th March. So we will be taking that 20th March also. We will be including both the days. The day when he entered India and the day when he is leaving India, that is exiting India. Okay. So both the days will be taken for the calculation of number of days for that 182 or 60, whatever the condition will be. Got it? Yes, sir. यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? Yes. पूछना नहीं. तो सी वी हैव डिस्कस कि वो रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा. मतलब इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड देन ही इज रेसिडेंट, एंड इफ बोथ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड देन ही विल बी नॉन रेसिडेंट. Non-resident. ठीक है. नाउ वंस ही इज रेसिडेंट इन इंडिया, then again there two conditions come. One is ordinarily resident and the other one is not ordinarily resident. ठीक है. Ordinarily resident and not ordinarily. So once we decided that this person is resident in India, then we have to see whether he is ordinarily resident or not ordinarily resident. Now for that again there are two conditions, but now we have to focus over here that over here it is written and means both the condition must be fulfilled, है ना. रेसिडेंस का चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? और यहाँ पे क्या था? और कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हुआ तो ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एंड. मतलब दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड या बोथ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड तो वो क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. ठीक. नाउ फॉर बीइंग ऑर्डिनरीली रेसिडेंट देयर आर two conditions. He she should remain in India as resident for at least 2 years out of 10 years immediately preceding to previous year. Basically relevant previous year. Okay. Relevant previous year को छोड़ के उसके पहले के 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट रहा हो. मतलब वो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल किया हो, है ना. तो immediately preceding the relevant. Suppose करो now we are taking the assessment year 2020-21. The previous year, relevant previous year will be 2019-20. So preceding 1920 we will be seeing immediately preceding 10 years before 1920. Out of the 10 years he should be resident in India for 2 years, and she should stay in India for at least 730 days or more during 7 years immediately preceding to previous years. Again relevant previous year से preceding. See additional condition, both the additional condition
जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को यहाँ पे नहीं लेके चलते, हम लोग हमेशा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले का टाइम को लेते हैं। तो दो कंडीशन है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट रहा हो, Yes, sir. एंड रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के प्रीसीडिंग 7 इयर्स में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक है, इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड then he will be ordinarily resident, and if any one of the condition is not satisfied or both the condition is not satisfied, then he will be not ordinary resident. So it is mentioned over here, if any of the above condition is not satisfied, then an individual will be not ordinarily resident. ठीक है, now we will be discussing in case of Hindu undivided family, HUF. अभी हम लोग किसका देखे थे, इंडिविजुअल का। होपफुली सबको ये इंडिविजुअल का क्लियर है। Yes, sir. Now we will be discussing about Hindu undivided family, HUF. So again there will be two conditions, one is resident, the other is non-resident, and in resident again there will be two conditions, ordinarily resident and not ordinarily resident. ठीक है, so अब इसको रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट होने के लिए हम लोग ये नहीं देखेंगे कि पर्सन, यहाँ पे पर्सन कहाँ से देखेंगे, हफ इज अ बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ बिजनेस, सो हम लोग ये देखेंगे कि बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम वेयर। इफ ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर हफ विल बी रेसिडेंट इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया। कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, चाहे फुल्ली या पार्शियली, तो the HUF will be resident, and it will be non-resident if whole of the control and management is situated outside India. पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि वो जो बिजनेस है, बिजनेस का कंट्रोलिंग पावर, मैनेजमेंट पावर कहां पर है। नाउ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मींस that place where the policies to operate the business is made and the instruction of important aspects are given. जहां पे भी important policies बनता है, important decisions लिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो we will be seeing कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है बिजनेस का। if it is in India तो वो रेसिडेंट है, चाहे फुल्ली हो या पार्शियली, और इफ कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। समझ में आया? Yes, sir. अब एडिशनल कंडीशन में आ जाते हैं कि ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा। तो याद रखना, बिजनेस कभी भी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता है, बट हफ के केस में हम लोग डिसाइड करते हैं कर्ता से, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है पूरे बिजनेस को, कर्ता, द हेड ऑफ द फैमिली। Yes, sir. ठीक है ना, कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो इसी के लिए कर्ता शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 years out of 10 years immediately preceding relevant previous year। मतलब वो जो दोनों कंडीशन हम लोग इंडिविजुअल में पढ़े थे ना कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यहाँ पे वही दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, बट वो फुलफिल करेगा कौन, कर्ता, द हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द बिजनेस। तो कर्ता और मैनेजर, तो मैनेजर को हम लोग जनरली नहीं लेते, हम लोग यहाँ पे कर्ता का ही देखते हैं। ठीक है ना, तो इफ कर्ता हैज बीन इन इंडिया फॉर 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant previous year, and कर्ता has stayed in India for at least 730 days during the 7 years immediately preceding the relevant previous year। okay, Yes, sir. Previous year. हाँ Sir, previous year, not. देखो, प्रीसीडिंग जो प्रीवियस ईयर यहाँ लिखा है ना, बेसिकली यहाँ पे एक वो Yes, मिस हो sir. गया, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, हम Okay, इसको ना sir. रेक्टिफाई करके तुम लोग को भेजेंगे। जहां जहां पे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स क्या होता है, प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। Yes, sir. ठीक है ना, हम इसको रेक्टिफाई करके तब तुम लोग को भेजेंगे। यहाँ कुछ एरर हो गया था। Okay, sir.
तो हम लोग इंडिविजुअल और हफ ये दोनों को समझ लिए, यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now we will be discussing about in case of a firm or association of person, that is AOP. ठीक है ना? If we are discussing about a firm or association of person, then there will be resident and non-resident. मतलब यहाँ पे ordinary not ordinary का कोई बात ही नहीं आएगा. यहाँ पे क्या होगा? Either they are resident or they are non-resident. Non-resident. ठीक है. So condition क्या होगा of being a resident? So a firm or an AOP will be resident in India if its control and management fully or partially is situated in India. वही चीज हो गया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो हम लोग हफ में पढ़े थे. Yes, sir. कि कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली या पार्शियली इंडिया में है तो वो फर्म या एओपी जो होगा वो रेसिडेंट होगा. और अगर कोई फर्म और एओपी जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, देन दैट फर्म और एओपी विल बी नॉन रेसिडेंट. ठीक है. Yes. तो ये था एओपी और फर्म का. यहाँ पे खाली हम लोग को ये पता है करना है कि वो लोग रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट. यहाँ पे ऑर्डिनरीली नॉट ऑर्डिनरीली कुछ नहीं होगा. देन इन केस ऑफ अ कंपनी, इफ वी टॉक अबाउट अ कंपनी, ठीक है, then again there will be two condition. One will be resident, the other will be non-resident. Now if condition of a resident, we will see the condition of a resident, then a company will be resident if it is an Indian company. Now how we will come to know whether the company is Indian company or not? Do you have any idea? See, how we will come to know about whether the company is Indian company or not? No idea, sir. क्या सर फिर से? See, it's simple. Have you ever heard about companies law, company law, Companies Act 2013? So there is a company law which is governed by Companies Act 2013. Okay. So if any company that is registered under Companies Act 2013, then that company will be an Indian company. ओके. तो वहां पे हमको चेक करने का जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट ही होगा. जैसे रिलायंस, हम लोग बोलते हैं ना रिलायंस इज एन इंडियन कंपनी. Yes, sir. कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है. कंपनीज एक्ट में बेसिकली रजिस्टर्ड है. 1956 2013 किसी में भी रजिस्टर्ड हुआ हो वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इसी के लिए वो इंडियन कंपनी. तो वो बाय वर्च्यू जैसे ही वो रजिस्टर हुआ इंडिया में वो इंडियन कंपनी बन गया, वो हो गया रेसिडेंट है. उसमें हमको कुछ देखने का जरूरत नहीं है. ठीक है. बट अगर फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है तो हम लोग ये देखेंगे कि इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया और नॉट. POEM, पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. Management. If the place of effective management is in India, then that company will be resident in India. Now place of effective management means the head post, that is directors. If maximum of the directors are of India or their decision, their important decision are made in India, then they will be resident in India. Okay. So we calculate all these information, all these data just to get information regarding whether how much taxability there will be, whether the tax will be high or the tax will be low. यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, पूछो. सर बाय द वे बाहर की जो कंपनी इंडिया में ओपन करेगी तो मतलब उसका क्या होगा सर? देखो बाहर की कंपनी है तो वो बाहर रजिस्टर्ड है. ठीक है. फॉरेन कंपनी अपने किसी फॉरेन कंट्री में जहां पे भी उसका जो बेस कंपनी है,
सपोज करो अगर हम सैमसंग का बात करते हैं तो सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, वो साउथ कोरिया में रजिस्टर्ड हुई है। तो अब क्या होगा कि वो कंपनी जब इंडिया में आई काम करने, तो इंडिया में जब अपना वो खोलेगी प्रोडक्शन यूनिट्स और सब, तो हम लोग वही देखेंगे ना कि यहाँ पर से उसका मैक्सिमम डिसीजन लिया जा रहा है कि नहीं, जो इंडिया जैसे के लिए। एप्पल खोली हुई है सर अब इंडिया हाँ में, एप्पल खोली हुई है अपना। हाँ, एप्पल खुला हुआ है ना। तो अब इंडिया का जो पॉलिसीज है, इंडिया का जो डिसीजन है, इंडिया के लिए जो डिसीजन है, अगर वो भी यहाँ पे लिया जा रहा है ना, तो वो यहाँ का रेसिडेंट कहलाएगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है जो यहाँ पे खोल तो ली है प्रोडक्शन, बट सारा डिसीजन जो मेकिंग पावर्स होता है वो आउटसाइड सब इंडिया भी होता है। जो उन लोग का हेड यस ऑफिस है वहां से भी डिसीजन लेके वहां पे यहाँ पे उन लोग बता देगा। तो फिर वो लोग नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि सारा इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, वो इंडिया से बाहर है। वो लोग सिर्फ यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है। यस ठीक है सर। ना? तो इसी के लिए हम लोग को इस चीज को ध्यान रखना होगा कि इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ से। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इंडिया ही के रिगार्डिंग हो, पूरे हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के रिगार्डिंग होगा, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है वहां तो हेड ऑफिस है, वहां तो डिसीजन लिया ही जाएगा। पर हम लोग ये भी इंडिया में देखें, भी हो सकता है डिसीजन सर। अगर इंडिया के लिए ही डिसीजन लेना है और इंडिया में ही लिया जा रहा है, तो वो रेसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, कुछ तो कंट्रोल है ना यहाँ पे भी। Yes, sir. ठीक है, अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। तो तुम लोग का ये सब पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है टैक्स? नो सर, No, टैक्स तो sir. पढ़ा No, sir. हम्म। No, नो sir. सर, नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। अब एक काम करो, हम लोग यहाँ तक जो पढ़े ना, अब एक क्वेश्चन लिखो। सब लोग क्वेश्चन लिखो। अ पर्सन 1 मिनट सर। 1 minute, sir. a person came to visit India on अ पर्सन a person came to visit India on 1st November। सर विजिट इंडिया के बाद क्या बोले सर? क्या चीज? विजिट इंडिया के बाद सर रिपीट है। A person came to visit India on 1st November 2020 फर्स्ट and नवंबर सर। हाँ 1st November 2020 Yes, sir. and leaves India on 31st March 2021 लीव्स इंडिया के बाद सर। and leaves India on 31st March 2021 calculate the residential status। calculate the मार्च मतलब not calculate, sorry, determine the residential status। चलो हम तुम लोग के लिए ये पेज खोल दिए ताकि तुम लोग देख सको रूल। अब ये पहले बताओ कि वो रेसिडेंट है या डिटरमाइंड के बाद क्या बोले थे सर? तो रेसिडेंट है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये बताओ कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट क्या रेसिडेंट है सर? रेसिडेंट है।
Yes, sir. 1 minute, sir. Yes, sir. देख लो, कैलकुलेट कर लो। नॉन रेसिडेंट है सर। देखो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता करेंगे, इसको हम लोग को सीखना ना पड़ेगा। Yes, तो हम sir. लोग हर चीज देखो, नवंबर 1 को आया ना, तो पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी सब रहा, तो नवंबर sir. में 30 डेज, तो वी विल बी टेकिंग 30 डेज। दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 28, मार्च में 31। Yes, sir. ठीक है ना? तो देखो कैलकुलेट करके कितना आएगा। सर नॉन रेसिडेंशियल होगा क्योंकि सर हाँ? 82 डेज से भी कम हो रहा है यहाँ पे। नॉन रेसिडेंटियल होगा। तो ये नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि Yes, टोटल sir. 151 डेज आएगा। जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा होगा? 151 डेज। 151 डेज आ रहा है। तो 1. देखो 151 डेज आया, तो कंडीशन 1 के हिसाब से तो नहीं हुआ, क्योंकि वो 182 डेज चाहिए। Yes, sir. और कंडीशन 2 के हिसाब से भी क्या होगा ना, कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज चाहिए, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज है, पर जी सर. उसके पहले के 4 साल में 365 दिन चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे पढ़ें कि अ पर्सन केम टू इंडिया, केम टू विजिट इंडिया, तो उसी समय आया है, तो पहला 4 साल में 365 दिन नहीं रहा होगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाओगे तो अब क्लियर हो जाएगा। लिखो, डायरेक्ट हम डेट लिखवा देते हैं ना, कि ये एंटर कब किया इंडिया में। Yes, sir. ठीक है ना? तो लिख लो, डेट ऑफ एंटरिंग इंडिया 2 अक्टूबर 2019। डेट ऑफ सर, डेट ऑफ एंटरिंग इंडिया, इंडिया में आया है कब? 2 अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 सर। 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। ये एंड लेफ्ट इंडिया on 31st March 2020। 31st March 2020। अब बताओ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट? सर रेसिडेंट है। रेसिडेंट है। Yes, sir. Resident. रेसिडेंट। Yes. कितना डेज आ रहा है? 183 183। 3. सर। 183 कैसे आएगा? अक्टूबर सर में लीप कितना डेज ईयर लिखो? अक्टूबर में 30 डेज होगा ना, Yes, sir. क्योंकि Sir. 2 अक्टूबर से कैलकुलेट करना है, 1 अक्टूबर से नहीं। सेकंड। तो अक्टूबर में 30 डेज, नवंबर में 30 sir. 30. 30, दिसंबर 31 sir. 31 सर। 31 31, जनवरी 31. 30 एक्चुअली फरवरी लीप ईयर था। फरवरी में वी विल बी टेकिंग 29 डेज। हम इसीलिए ये क्वेश्चन दिए, बिकॉज अगर तुम यहाँ 28 डेज लोगे ना, तो तुम्हारा 181 आएगा। Yes, sir. 29 लोगे तो 182 आएगा। ठीक है ना? क्यों ये हम लोग यहाँ 29 लेंगे, क्योंकि 2020 इज अ लीप ईयर। Leap. तो हम लोग को इसको भी ध्यान रखना होगा कि लीप ईयर अगर है तो फरवरी में आई हैव टू टेक 29 डेज, नॉट 28। Yes, sir. है ना? अब पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है?
तो जो भी ईयर डिविजिबल बाय 4 हो With 4. दैट इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो 2020 इज डिविजिबल बाय 4, सो इट इज अ लीप ईयर। तो हम लोग फेब में 29 लेंगे और फिर मार्च में 31, तो जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182 डेज। तो Yes, ये sir. पहला वाला कंडीशन मेरा क्या किया, फुलफिल कर दिया ना 182 डेज का, कि दैट Yes. पर्सन इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182. Resident होगा ना sir? 182 डेज। 82 ठीक है, बताओ अभी ये एक पॉइंट क्लियर हो गया ना, ये सब चीज कि हम लोग को कैसे कैलकुलेट Yes, करना sir. है डेज। Yes, sir. यस सर। सर फरवरी में हमेशा 29 लेना है सर। नहीं, हमेशा 29 नहीं लेना है, 28 लेना है 28 हमेशा, भी तो बस ले लीप सकते हैं ईयर सर। होगा तो 29 लेंगे, 28 भी ले सकते हैं। ओके सर। है ना, हमेशा 28 ही डेज होता है, बट सिर्फ लीप ईयर में 29 होता है। तो अगर लीप ईयर मतलब जो डिविजिबल, ऐसा ईयर जो डिविजिबल बाय 4 हो, इफ इट इज अ लीप ईयर, तो हम लोग को वहां 29 लेना है। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ना ये सब छोटा छोटा जगह है जहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो बस ये सब हम लोग अगर ध्यान रख लेंगे तो यहाँ पे गलती नहीं होगा और हम लोग से सब सही सही बन भी जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? सर नोट सेंड कर दीजिएगा सर। क्या चीज? ये सर सेंड कर दीजिएगा सर। आवाज नहीं आ रहा। सर बोल रहा है PDF कि सेंड करने नोट PDF सेंड सेंड कर देने के लिए। एक कोई बोलो। पीडीएफ सेंड करने के लिए बोल अच्छा, रहे हैं सर। पीडीएफ तो यार सेंड कर ही देते हैं ना हर, यस सर, यस सर। तो हम पीडीएफ तो भेज देंगे, उसका इशू नहीं है, और सर उसको हम पोस्टर करेक्ट बना करके रेक्टिफाई करके आज रात तक में भेज देंगे, Yes, फर्स्ट sir. ऑफ ऑल। और दूसरा चीज है कि आई विल आल्सो बी सेंडिंग असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट मींस सर्टेन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम तुम लोग को भेजेंगे, ओके सर। ठीक है ना, इस रेसिडेंशियल स्टेटस से जुड़ा हुआ। सो तुम लोग को वो प्रैक्टिस करना है, वो बनाना है, ओके सर। है ओके ना। सर। सर। पीडीएफ में तो नहीं, क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चन आप नहीं ना बनाएंगे प्रैक्टिकल, तब तक Yes, sir. टेक्स्ट में मन भी नहीं लगेगा, प्लस थोड़ा सा हम लोग को ये भी रहेगा ना प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए। एंड प्लीज एवरीवन, हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पूछेंगे तो तुम लोग पढ़ के आओगे, ओके सर। है ना, क्योंकि जितना इंटरैक्टिव क्लास होता है उतना बढ़िया रहता है। Now, who is the class representative? Please send me the attendance of all. ठीक है, और हम तुम लोग को पीडीएफ भी भेज देंगे इसका, और तुम लोग को हम कुछ क्वेश्चंस का असाइनमेंट भी भेजेंगे जो तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आना है। ओके सर। ओके सर। ओके, चलो ठीक थैंक यू सर। थैंक यू सर। है। ओके, थैंक यू सर।